Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. स्वाध्यायः परमं तपः. ઇન્ફોર્મેશન અને કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીના નવતર ઉપયોગથી જ્ઞાનના ભંડાર ખોલી આપતો મુક્ત અને મોબાઈલ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ એટલે કામધેનુ. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી પ્રેરિત વિશ્વનો સૌથી અદ્યતન ક્લાસરૂમ ઓન વ્હીલ્સ. મુંબઈ ઇન્ટરોપ 2012ની ચોથી એડિશનના ભવ્ય ઇન્ટરોપ ઇવેન્ટમાં ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે દાખવેલા એન્ટરપ્રાઇઝ, ડ્રાઇવ, ગ્રોથ અને એક્સલન્સ બદલ એચ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. યુનાઇટેડ બિઝનેસ મીડિયાના આઈટી ન્યૂઝલેટર ઇન્ફોર્મેશન વીક દ્વારા પ્રસ્થાપિત એચ એવોર્ડ મેળવનાર કોર્પોરેટ સંસ્થાઓ પૈકી BAOU જ એકમાત્ર શૈક્ષણિક સંસ્થા છે. A good way to start is if people can shout out थोड़ा चिल्ला के कि research topics क्या क्या हैं, so that I have a fair idea of the kind of audience that I have. Can we start somewhere in the back first, because that's where the shouting will happen more. Research topics, yes ma'am. I'm sure that this lecture is not going to be of any help to you because, okay, some more topics. On retail management. It's the commerce people who are shouting out the most. What about okay, so we do have commerce people, management and commerce people. Library science, what is the topic? Humanities, social sciences. Oh, okay. Social sciences. There was someone else from the back, I think. Yes, ma'am. English language and literature. People over here on this side. Computer sciences. I'll be the last person to talk about it. Psychology. Psychology, which field? Clinical psychology. And alcoholics mental health and suicide tendencies. Very, very scientific. Okay. What I'll try to do is give you a kind of a research map. And how do you tread that research map? How do you go around that place called research? Now, one of the first things, therefore, I'm going to do is try to define what we mean by research, or what the kind of research that we do. Now, research, it has been kind of said again and again that it is a sort of an inquiry. It has always baffled me, why is it an inquiry? Because if you have gone to the railway stations and bus stations, there are these windows where it's written inquiry, pooch parach, etc. And when we talk about research inquiry, when we say that research is a form of inquiry, what do we exactly mean by it? And I think once we define that, we will be able to give a sort of a map that can be used for research for all purposes. And here I am claiming a universal research model. I'm not saying that
it is for languages, or it is for social sciences, or it is for sciences, or it is for whatever. But there can be a universal research model which then can move into different disciplines and subjects and fields and can take a definite shape. But what I'm proposing today is a universal research model. Now, all research starts with defining problems. So, what is the problem and how do I approach that problem? No research can start without that. So, if it is an inquiry, तो पहला काम है कि प्रॉब्लम क्या है. Now it sounds very pessimistic, क्योंकि इसीलिए टीचर से ज़्यादातर लोग दूर भागते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम फाइंडर्स हैं हम लोग. वी आर प्रॉब्लम फाइंडर्स रादर दैन प्रॉब्लम सॉल्वर्स. वी डू सॉल्व प्रॉब्लम्स, but until unless we find a problem, we cannot go about solving it. Now, if I have identified a particular problem, I have to go about it in a structured fashion. Probably break it up into smaller units कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को, ये बहुत मेगा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतने बड़े प्रॉब्लम को मैं हैंडल नहीं कर सकता. सो व्हाट आई डू इज़ आई ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द प्रॉब्लम. छोटे छोटे यूनिट्स को मैं हैंडल कर सकता. तो वो छोटे यूनिट्स में कैसे ब्रेकअप करेंगे प्रॉब्लम को, तो उसमें कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स. सो वी हैव रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. वो प्रपोजल सब लोगों ने लिखा होगा यहाँ पे, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देने पड़ते हैं. ऑब्जेक्टिव्स का एक ये है कि they have to be measurable. My objective cannot be, I want to change the world. The objective has to be measurable at the end of the research. तो हम लोग जब कहते हैं कि objectives fulfill हुए रिसर्च के अंत में, हम लोग बेसिकली कह रहे हैं, and this is across all disciplines. This is across social sciences, humanities, लैंग्वेज स्टडीज़, साइंसेस, कॉमर्स, जहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव्स हम लोग स्टेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम टू स्मॉलर यूनिट्स. और जितना स्मॉलर यूनिट रहता है, दैट यूनिट हैज़ टू बी मेजर्ड एट द एंड. नाउ हाउ यू मेजर इट विल डिपेंड ऑन द डिसिप्लिन. कंप्यूटर साइंसेस में जैसे स्टैटिस्टिकल मेजर्स, ज़्यादातर साइंसेस में स्टैटिस्टिकल मेजर्स होंगे. साइकोलॉजी में काफ़ी साइकोमेट्रिक रिसर्च होता है. कॉमर्स में आई एम गेसिंग काफ़ी सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स होंगे. लार्ज नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल रिसर्च आई एम गेसिंग. पर मेजरमेंट कैसे करना है वो बाद में डिसाइड करते हैं. बट ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं दे रहा हूँ तो उसको वो मेजर होना चाहिए. It should be measured at the end of my research. तो बहुत लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स पहले लिखें या बाद में लिखें. वो चैप्टर 1 जो होता है ना, इंट्रोडक्शन, बहुत लोग पहले लिखते हैं. कौन से चैप्टर पे काम कर रहे हैं आप? तो इंट्रोडक्शन पे. तो नाउ हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस विदाउट राइटिंग समथिंग? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, एंड दिस इज़ प्योरली माइन, कि इंट्रोडक्शन लास्ट में लिखना. Because only when you have finished your research, you can write an introduction. Research proposal में पर BOU में भी है, मुझे पता है, objectives देने ही पड़ेंगे. अब पता ही नहीं है कि मंजिल कहाँ पे है, कहाँ पे पहुँचेगा, तो उसमें objectives कैसे define करें. तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है. You formulate a hypothesis. आप अगर कह दें कि इसके अंत में मेरा ये मानना है, एट द एंड ऑफ माई रिसर्च आई विल रीच दिस गोल. आई मे नॉट. हो सकता है कि मैं जिस एम से, ऑब्जेक्टिव से शुरू कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं पहुँचा. बट दैट इज़ ऑल्सो रिसर्च. पीपल समटाइम्स कन्फ्यूज दिस एलिमेंट ऑफ रिसर्च. Research is not success. Research is not
proving something that you have already decided on proving, तो फिर वो रिसर्च नहीं होता है। वो ऐसा है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि ये ख़राब आदमी है, और कोई भी डेटा डाल के वो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। रिसर्च इज़ व्हेन यू कीप इट ओपन, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस it might so happen what you thought is not proved, but even that is an example of a good research. That is an example of a very, very good research, because then you are saying, I thought wrongly. मैंने गलत सोचा था, ऐसा नहीं। अब हर एक रिसर्च में डेटा तो चाहिए, तो पहले हम लोगों ने क्या कर लिया कि इंक्वायरी से शुरू किया, ऑब्जेक्टिव्स पे पहुँचे, ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा रीअलाइन रीडिफाइन करने के लिए हाइपोथेसिस स्टेट किया, पर उसके लिए डेटा कहाँ से लाएंगे। ना ह्यूमैनिटीज़ में डेटा मिलना बहुत आसान है, किसी भी बुक स्टोर में चले जाओ, किताबें उठा लो, और आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में किताबें उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल ई कॉपीज़ आर अवेलेबल ऑन द नेट, यू डाउनलोड देम एंड देन स्टार्ट रीडिंग देम, सो डेटा इज़ मच मोर ईजीली अवेलेबल। कॉमर्स में डेटा गैदरिंग कैसे होता है मैम? कॉमर्स में हाउ डू यू गैदर डेटा? क्या करना पड़ता है? कुछ सर्वे से कलेक्ट करना पड़ता है, ओके। सो सम डेटा दैट इज अवेलेबल एज एन आर्काइव, आई विल यूज दिस वर्ड लेटर, कि हर एक कोई भी डिसिप्लिन में रिसर्च के लिए पहला काम है डेटा अवेलेबल है, पर वो डेटा और आर्काइव में एक फ़र्क है। बिकॉज व्हेन आई क्लासीफाई दैट डेटा इन अ मैनेजेबल फॉर्म, देन आई एम क्रिएटिंग एन आर्काइव। तो मैंने डेटा कलेक्ट किया, मान लीजिए मैं अपने फील्ड से ले रहा हूँ, एंड आई एम श्योर दैट यू कैन रिलेट इट टू योर ओन फील्ड्स। मेरे फील्ड में मैं लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों फील्ड में थोड़ा बहुत काम करता हूँ। तो लिटरेचर में डेटा इज़ अ लिटरेरी टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, और अ सीरीज़ ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, डिपेंड करता है कि कौन से लेवल का रिसर्च है। पर मान लीजिए पीएचडी रिसर्च के लिए आई कैन डिसाइड ऑन एन ऑथर, और आई कैन डिसाइड ऑन अ पीरियड, एक पीरियड ले लिया, और आई कैन डिसाइड ऑन व्हाट इज़ नोन एज टेक्सचुअल सर्कुलेशन। मान लीजिए कि शेक्सपियर पे अंग्रेजी साहित्य में बहुत सारा काम हुआ है, पर शेक्सपियर हमारे देश में कैसे पहुंचा, तो मैं ट्रेस कर सकता हूं कि मैं शेक्सपियर पे काम नहीं कर रहा हूं, पर शेक्सपियर की किताबें किस तरीके से हिस्टोरिकली हमारे यहाँ पे घूमी। तो मैं शेक्सपियर के ट्रांसलेशंस देख सकता हूं, गुजराती में काफ़ी हैं, अर्ली लेट 19th सेंचुरी में गुजराती में हैमलेट के काफ़ी ट्रांसलेशंस हुए थे। मराठी थिएटर में काफ़ी है, पारसी थिएटर में काफ़ी शेक्सपियर घूमे, अलग अलग नामों से घूमे। हिंदी थिएटर में काफ़ी घूमे, भारतेंदु हरीशचंद्र का एक पूरा नाटक ही है दुर्लभ बंधु, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का ट्रांसलेशन है। तो ये जो किताबें घूमी उसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ। तो पर ये मेरा आर्काइव है। मैंने क्या किया, मैं शेक्सपियर के हैमलेट पे काम नहीं कर रहा हूँ। शेक्सपियर के हैमलेट का ट्रांसलेशंस कौन सी भाषाओं में हुआ, क्यों हुआ, उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए, वो मैं स्टडी कर रहा हूँ। पर वो आर्काइव मैंने डिफाइन कर दिया कि मेरा जो फील्ड है वो मैंने डिलिमिट कर दिया। मैं बाकी बहुत सारे ऑथर्स के भी ट्रांसलेशन हुए हैं, पर मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इन किताबों को देखूंगा। लैंग्वेज स्टडी में भी अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बट आई एम श्योर दैट यू कैन रिलेट इट टू क्रिएटिंग एन आर्काइव। तो पहला जो काम करते हैं डेटा में, जब हम लोग क्लासीफाई करते हैं डेटा को, तो पहला काम करते हैं कि आर्काइव बनाना। होता क्या है कि आर्काइव कभी एक्सपैंड करता है एज द रिसर्च प्रोग्रेसेस, कि आपने शुरू किया एक सेट से, उसके बाद आपने देखा थोड़ी देर जाने के बाद कि ये सेट इनफ नहीं है, मुझे और डेटा चाहिए, सो यू कैन एक्सपैंड इट। या फिर आपने देखा कि ये सेट बहुत एक्सपेंसिव है एंड आई कैन नॉट वर्क विद दिस सेट, सो आई हैव टू प्रूव इट। जैसे शेक्सपियर ट्रांसलेशंस अगर मैं सिर्फ बंगाल में ले लूँ तो 6 साल लग जाएंगे मुझे पीएचडी लिखने में,
पर मेरा ओरिजिनल सेट मैंने मान लीजिए कलेक्ट किया है मराठी ट्रांसलेशंस, गुजराती ट्रांसलेशंस, हिंदी ट्रांसलेशंस, बांग्ला ट्रांसलेशन। मैंने जब काम करना शुरू किया मेरे गाइड ने कहा आपके पास 3 साल हैं या 4 साल हैं या 5 साल हैं या 6 साल हैं, वॉटेवर, और मुझे अगर पीएचडी नहीं होता है मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली, थैंक्स टू यूजीसी। तो मेरा इंक्रीमेंट रुक जाएगा। बहुत सारे अदर फैक्टर्स काम करते हैं रिसर्च में। प्योर रिसर्च इंटरेस्ट के लिए रिसर्च नहीं होता है, तो वो जो अदर फैक्टर्स हैं देन डिसाइड्स मेरा आर्काइव कितना होगा। तो मैं कहूँगा 3 साल में मैं सिर्फ बांग्ला ट्रांसलेशन ही देख सकता हूँ और कुछ नहीं, बाकी देखा जाएगा। मैंने आर्काइव तो बना लिया है, टाइम मिलेगा बाद में तो उस पर काम करेंगे, बट दैट डीलिमिटिंग द आर्काइव इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आर्काइव तो बन गया, एनालिसिस कैसे करेंगे और इंटरप्रेट कैसे करेंगे। Now, analysis and interpretation is a very political act, and I'm using the word very deliberately. It is a very political act. People don't realize it. People सोचते हैं कि हम लोग अगर social sciences में काम कर रहे हैं, हम लोग objective हैं, हम लोग हट जाते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं हमें जो कहना है और हम जिस तरीके से कहते हैं वो उभर के आता ही। साइंसेस में मैं कहता हूँ ये इल्यूशन है, द इल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कि प्योर डेटा पे काम होता है, उसमें हम कहीं नहीं है रिसर्चर्स। क्योंकि ये भी अभी मिथ जो है ये टूट रहा है। तो इससे पहले कि मैं अपने आप को छुपाऊं, रिसर्च में स्पेशली व्हेन आई एम एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, वहाँ पे एक मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क चाहिए मुझे, जहाँ पे मैं अपना पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, ये मेरा लोकेशन है, दैट्स द वर्ड दैट इज़ यूज्ड, ये मेरा लोकेशन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, खड़ी हूँ, व्हाटएवर। सो आई स्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट, आई एम लुकिंग एट द डेटा, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट that there might be other points of view to look at the data, but I am not using them. ये जो delimitation of research है, जिसको कहते हैं कि delimiting the field, ये actually delimiting of the self भी है। ये मुझे भी delimit करना पड़ेगा कि मैं किस एंगल से इस डेटा को अप्रोच करूँगा, और हर एक एंगल का अपना पॉलिटिक्स होता है, क्योंकि you cannot look at the data from all the angles. तो एक मेथड सोशल साइंसेस में करते हैं, वो ट्रायंगुलेशन कहते हैं, टू मेक इट अ बिट मोर ऑब्जेक्टिव। ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगल की तरह है। तो मैंने डेटा सोर्स देखा कि मैंने सोर्स से डेटा लिया, वो एक डेटा मिला, मैं सोर्स के पास वापस गया, मैंने एक क्वेश्चनेयर सर्वे किया वहाँ पे, वो दूसरा मिला। आई एम लुकिंग एट द सेम डेटा बट आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स। मैंने क्वेश्चनेयर देखा, उसको पढ़ा, मुझे लगा कि ये लोग जो कह रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे जो ओरिजिनल सोर्स से मिला है और क्वेश्चनेयर से जो मुझे मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच है। सो व्हाट आई डू इज़ आई गो बैक एंड कंडक्ट इंटरव्यूज़ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिसमैच हो रहा है। तो मैंने 3 एंगल से सेम सोर्स को स्टडी करने की कोशिश की, तो ट्रायंगुलेशन हुआ। सोशल साइंसेस में ट्रायंगुलेशन माना जाता है बहुत अच्छी चीज़ है, कॉमर्स में भी होता है ट्रायंगुलेशन। So triangulation of research, you look at the same set of data from 3 points of view so that more things can come out. पर ये मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ डीलिमिटिंग द डेटा नहीं है, इसमें डीलिमिटिंग द मेथोडोलॉजिकल पोजीशन भी है। मैं सब कुछ नहीं कह सकता मेरे रिसर्च में, असंभव। तो साइकोलॉजी में मैं फ्रॉइडियन फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा, ईगो साइकोलॉजी यूज़ करूँगा, या फिर यूंगियन फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा, या फिर लकानियन फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा। मुझे पहले से चूज़ कर लेना पड़ेगा। फ्रॉइड में भी, फ्रॉइड ने 170 किताबें लिखी हैं, उसमें कौन सा फ्रेमवर्क मेरे लिए यहाँ पे काम आएगा। सो डिसाइडिंग ऑन दैट थियोरेटिकल मोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन लेवल। तो ये थियोरेटिकल जो
बात कर रहे हैं हम लोग, थियोरेटिकल मोड है, थियोरेटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेमवर्क है। दो बेसिक फॉर्म्स हैं इसके। देयर आर टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव कहते हैं। सो वन ऑफ द फॉर्म्स कुड बी अ क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क, वन ऑफ द फॉर्म्स कुड बी अ क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क। क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। आप कोई भी पेपर छापने जाएंगे अमेरिका में, इफ इट डज नॉट फॉलो अ क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क, द चांसेस आर दे विल नॉट पब्लिश इट, बिकॉज दे बिलीव कि हार्ड फैक्ट्स हमें दिखाओ, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके दिखाओ, परसेंटाइल एनालिसिस करके दिखाओ, तभी हम लोग मानेंगे। पहले क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क की बात कर लें, बिकॉज इट्स ईजियर टू डिस्क्राइब। द क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क obviously uses a lot of statistics, but that is not the important aspect of it. Quantitative framework का belief है कि things can be measured, analyzed, and conclusions can be drawn from that analysis, which is mostly in terms of numbers. Now, when for example, I'll just give you an example from a recent research project that I have been associated with. We are looking at literacies. Literacy देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम तो हम लोग के साथ ये था कि लिटरेसी को डिफाइन कैसे करें। हाउ डू यू डिफाइन लिटरेसी? गवर्नमेंट बहुत आसानी से डिफाइन करती है। गवर्नमेंट लिटरेसी रेट्स, आप लिटरेसी चार्ट्स देखेंगे तो गवर्नमेंट का डेफिनेशन है पर्सन हु कैन रीड एंड राइट। तो बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल लिटरेसी में मानते हैं। अभी उसमें न्यूमेरिकल लिटरेसी को ऐड किया गया है, तो उसमें ये भी ऐड किया गया है कि आप अगर काउंटिंग जानते हैं तो आप लिटरेट हैं। लिटरेसी सर्वेज जब होते हैं, मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, तो लिटरेसी सर्वेज में अब anyone who participated in literacy survey over here, it's very very interesting. वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है और वहाँ पे बोला जाता है कि अपना नाम लिखो। If you are successful in writing your name, you are literate. तो which is okay, ठीक है, क्योंकि वो नंबर है। तो मैंने बहुत सारे नंबर जनरेट किए, उसमें मुझे पता चला कि 100% लिटरेसी रेट है केरला में, 98% लिटरेसी रेट है तमिलनाडु में, whatever, उड़ीसा में कम है, गुजरात में भी काफ़ी कम है, इफ़ यू गो बाय गवर्नमेंट फिगर्स। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो लिटरेसी दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। थोड़े गांव में हम लोग एथनोग्राफिक स्टडी करने जाते थे। प्रॉब्लम ये कि सबके पास मोबाइल फ़ोन है। तो हम लोग गांव में जाते थे। भावनगर के बाजू में एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे हम लोग गए। हम लोगों ने वहाँ से पूछा कि आप अपना नाम लिख सकते हो आप? तो उन्होंने कहा नहीं। आप काउंटिंग जानते हो? हाँ, काउंटिंग जानता हूँ, पर नाम लिखना पढ़ना नहीं आता है। स्टैंडर्ड 1 के बाद खेत में काम करता हूँ। तो आप मोबाइल फ़ोन कैसे, आपके पास तो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल करते हो? पता कैसे चलता है किसका फ़ोन आया? वो तो पता चल जाता है। अब पढ़ते हो ना, कैसे पता चलता है? हाउ डू यू नो दैट समवन्स फ़ोन इज़ कमिंग? हाउ डू यू नो दैट आई हैव टू कॉल दिस नंबर? हाउ डू यू फाइंड आउट? तो उन्होंने कहा मेरे मोबाइल में 20 लोगों के नाम हैं, तीसरा नाम जो है मुझे पता है मेरी पत्नी का है। नाउ will you count this as literacy? Government बोलेगी नहीं, it doesn't know how to read, but this is definitely a literacy strategy. तो मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ तब मुझे लिटरेसी को रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इसमें ये एक लिटरेसी स्ट्रैटेजी है। यही सेम खेत में काम करने वाला, हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। जब भी इंटरव्यूज़, स्पेशली सोशल साइंसेस को जो है ना, अगर इंटरव्यूज़ करते हैं, इंटरव्यू जब ख़त्म हो जाता है और टेप रिकॉर्डर जब स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें लोग कहते हैं, तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम लोगों ने इस फार्मर के साथ
इंटरव्यू किया, बंद कर रहे थे हम लोग अपना टेप, तो उन्होंने कहा सर एक और चीज़ करता हूँ मैं मोबाइल फ़ोन से। मैंने बोला अच्छा क्या? तो मेरा खेत जो है मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, तो मैंने ना वहाँ पे जो पंप है वहाँ पे एक सिम कार्ड लगाया हुआ है, मैं यहाँ से मिस्ड कॉल मारता हूँ तो वो पंप चालू हो जाता है, और फिर से मिस्ड कॉल मारता हूँ तो वो पंप बंद हो जाता है। तो मुझे 3 किलोमीटर चल के खेत हर दिन जाना नहीं पड़ता है। अब इसको लिटरेसी कहेंगे नहीं कहेंगे? तो I'll give you one more example because I thought this is a good way of looking at the archive कि आप अगर कोई भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो उसका डेफिनेशन मान के चलना कि अरे ये तो गवर्नमेंट ने कहा लिटरेसी है तो यही लिटरेसी होगा, वैसा नहीं। तो आर्काइव का जो डिलिमिटेशन है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। दूसरा, हम लोगों ने अहमदाबाद के बाजू के गांव में हम लोग गए थे, तो वहाँ की काफ़ी लड़कियाँ, हम लोग का एक सैम्पल था विमेन वर्क फोर्स। काफ़ी लड़कियाँ अहमदाबाद ट्रैवल करती हैं ट्रेन से। इन द मॉर्निंग दे कैच लोकल ट्रेन, दे कम टू अहमदाबाद, वर्क एंड गो बैक टू देयर विलेजेस। तो वहाँ पे भी यही इंटरव्यू के अंत में जब सब कुछ हम लोगों ने सोचा ख़त्म हो गया, तब सबसे इंटरेस्टिंग बात कही गई। इंटरव्यू हो गया, हम लोग से पूछ रहे थे कि आप मोबाइल फ़ोन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। तो घर के सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। शी वॉज अराउंड 24 ईयर्स ओल्ड एंड घर के सारे लोगों के साथ बैठ के वो बोल रही है मैं तो फ़ोन करती हूँ, कभी कभी SMS करती हूँ वगैरह वगैरह। दे आर लिटरेट पीपल, दे आर एजुकेटेड पीपल, दे आर वर्किंग। तो हम लोग निकल रहे थे तो मैंने बोला अरे आपके पास तो 2 फ़ोन हैं। सो शी हैज़ 2 फोन्स, एक बेसिक फ़ोन है और एक स्मार्टफोन है। तो मैंने बोला दोनों में यूज़ करती हैं आप, दोनों सिम कार्ड्स यूज़ करती हैं? तो उसने कुछ बताया नहीं। हम लोग जब घर से बाहर निकले तो वो आई पीछे पीछे, उसने बोला सर असली में वहाँ पे मैं नहीं बता सकती थी, गांव में ना यहाँ पे वो फेसबुक और चैटिंग वगैरह करते हैं ना तो बहुत बुरा बोलते हैं हम लोग को। तो हम लोग इसीलिए जैसे ही ट्रेन पे चढ़ते हैं तो मैं ये फ़ोन ऑन कर देती हूँ, तो इसमें 99 रुपीज़ का एक कनेक्शन लगा हुआ है, तो मैं फेसबुक में जो भी अपडेट करना है ट्रेन पे कर लेती हूँ और फिर वापस आती हूँ। तो हम लोग इसमें ये जो रिसर्च था ये हम लोग देख रहे थे कि जेंडर स्ट्रैटेजीज़ क्या यूज़ होते हैं। अब ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ये जेंडर स्ट्रैटेजी हो सकता है एक, ओके, क्योंकि जेंडर स्ट्रैटेजी पे काफ़ी लिटरेचर हुआ है, पर कभी ऐसा नहीं मिला है उसमें कि यूजिंग 2 मोबाइल फोन्स to access a social networking site, because that is a different world. So she is a different woman on the train and she is a different woman in the village. तो ये जो जेंडर स्ट्रैटेजी है ये हम लोग का डेफिनेशन और ब्रॉडन कर रहा है। Now, therefore, what I am looking at is right now, ये जो मुझे डेटा मिला, अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे? So let's come back to the quantitative, qualitative जो डिस्टिंक्शन मैंने किया था। क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल है और आई कैन क्रिएट इट, आई कैन जनरेट इट। आई अगेन गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम अ लैंग्वेज पर्सपेक्टिव। मुझे पता लगाना है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने, मान लीजिए मैंने एक लिसनिंग एक्टिविटी बनाया है और मैं बहुत खुश हूँ उसको लेकर। लोगों को खुशफहमी होती है ना कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस आई हैव मेड, पर मुझे टेस्ट करना है कि ये लिसनिंग पैकेज जो है ये काम ठीक से करेगा, इनका लिसनिंग स्किल्स ठीक बढ़ाएगा या घटाएगा या क्या करेगा। तो मैं क्वांटिटेटिव रूट ले सकता हूँ, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के पास गया, मैंने कहा कि मैं तुम्हें एक टेस्ट दूंगा जो एक लिसनिंग टेस्ट होगा। मैंने उनको लिसनिंग टेस्ट दिया, उस मार्क्स को मैंने अपने पास रखा। 3 महीने तक मैंने जो लिसनिंग पैकेज बनाया था उनको उसी पैकेज के द्वारा पढ़ाया। 3 महीने के बाद मैंने उनको फिर से टेस्ट किया उनका लिसनिंग देखने के लिए। बहुत आसान सा मॉडल है। लास्ट टेस्ट में अगर उनको ज़्यादा स्कोर मिले हैं दैन द प्रीवियस प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन जिसे कहते हैं, तो उनको अगर ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, it is obvious that because of the listening package,
इनका लिसनिंग इम्प्रूव हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि लिसनिंग तो मैंने क्लास में 1-1 घंटे हर दिन पढ़ा है, तो इसको डिलिमिट कैसे करूँगा कि मेरे लिसनिंग के चलते ही हुआ है या फिर घर में जाके ये टीवी देख रहे थे इसलिए हुआ। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो गलत रिसर्च हुआ, तो मैं एक और थोड़ा बेटर मॉडल करता हूँ। मैंने एक कॉलीग को बुलाया और बोला कि आप क्लास में लिसनिंग पढ़ाती हैं? तो उन्होंने कहा हाँ पढ़ाती हूँ। तो मैंने बोला कि आप 3 महीने अपने बच्चों को लिसनिंग पढ़ाइए, 3 महीने मैं अपने पैकेज के द्वारा बच्चों को लिसनिंग पढ़ाऊँगा। उस ग्रुप में मैंने बोला बिफोर यू टीच लिसनिंग आप एक टेस्ट लीजिए, आफ्टर यू फिनिश टीचिंग लिसनिंग अब दूसरा एक टेस्ट लीजिए। मेरे क्लास में भी मैंने एक टेस्ट लिया, मेरा लिसनिंग पैकेज यूज़ किया और फिर एक टेस्ट लिया। फिर मैंने कोलीग से कहा कि प्लीज़ ब्रिंग योर टेस्ट स्कोर्स टू मी। सो कंट्रोल ग्रुप जो है उसका टेस्ट स्कोर्स लाइए। वहाँ पे मुझे दिखा कि उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है जितने मेरे बच्चों में हुआ है। सो ऑब्वियसली इस पैकेज में कुछ ऐसा है जो इनका लिसनिंग इम्प्रूव करवा रही है। नाउ दिस इज़ इसको और भी मैं डिलिमिट कर सकता हूँ बाई डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट दिस इज़ अ वेरी टिपिकल एक्सपेरिमेंटल मॉडल। ये एक वेरी टिपिकल क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। पर होता क्या है, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में तो मॉडलिंग चलता है, पर ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस में यू आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स, and human beings are notoriously unpredictable. You cannot predict them. तो उसमें मेरा अपना ये मानना है, a lot of people actually say quantitative analysis is much more objective. उसमें लगता है कि qualitative analysis थोड़ा होना चाहिए। अब qualitative analysis का मतलब ये नहीं है कि quality का analysis, but I can use different kinds of tools in qualitative analysis. We'll just talk about them very briefly. क्या क्या tools हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, and then we'll open it up for other things. Literature के कोई हैं यहाँ पर? साहित्य से, अंग्रेजी साहित्य कि हिंदी साहित्य, गुजराती, सारे इंग्लिश के ही हैं। लैंग्वेजेस, साहित्य अच्छा सारे अंग्रेजी के ही हैं कि और भी हैं भाषाएं? हिंदी में आपका पीएचडी टॉपिक क्या है? अच्छा, तो अगर चलिए आप ही का टॉपिक का एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता था। तो अगर आप रामायण के रिसेंशंस देखेंगे, रामचरितमानस तो एक है, हजारों हैं, तो मेरा आर्काइव बना कि रामायण को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है अलग अलग जगहों पर। एक इंडोनेशियन भी है, ए.के. रामानुजन की एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है इस पर। और फिर उस आर्काइव को मैंने डिलिमिट किया, मैंने देखा कि रामचरितमानस में क्या है। उसके बाद मैंने एक जेंडर मेथोडोलॉजी लिया जिसमें मैंने बोला कि उसमें नारी चरित्र जो हैं उसको किस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक, अब साहित्य वाला जो ये है उसमें आजकल थियोरेटिकल मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कौन से थियोरेटिकल एंगल से आप देख रहे हैं। तो लिटरेरी सर्वे के बारे में मैं उतनी बातें नहीं करूंगा क्योंकि ज़्यादा लिटरेचर के लोग नहीं हैं। अगर लिटरेचर के बारे में बात करनी है तो स्पेशली आपके लिए एक अलग सेशन किया जाएगा। बट लिटरेरी रिसर्च इज़ kind of a qualitative research, but it can be made quantitative, but let's not go into that debate. दूसरा क्वालिटेटिव है जो सर्वे, जो कॉमर्स वालों ने सबने कहा कि हम लोग सर्वे करेंगे। नाउ सर्वे अगेन कैन बी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव सर्वे को आप क्वांटिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो क्वेश्चनएयर कोडिंग के द्वारा,
इंटरव्यू सिंटैक्स एनालिसिस हो सकता है, SPSS तो आजकल सबके पास हो ही गया है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ी बहुत ज़रूरत है, पर थोड़ा अगर मैसिव क्वांटिटी ऑफ डेटा है आपके पास, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको रेडीमेड स्टैटिस्टिकल फार्मूला देते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। स्टैटिस्टिक्स कैन बी वेरी वेरी ल्योरिंग, सिडक्टिव, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फिगर्स थ्रो करता है ना, और बहुत इम्प्रेसिव लगता है, स्पेशली जिन लोगों को स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है। जैसे मेरे स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उनको जैसे ही नंबर्स मिलते थे वो पहले ही Z टेस्ट और T टेस्ट और T वैल्यू सब कुछ निकाल डालते थे। फिर मैंने बोला कि अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, ये तो नंबर है 1.20, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर T वैल्यू है ना, बस। बट T वैल्यू बता क्या रहा है मुझे? सो दैट स्टेप इज अ वेरी वेरी नेसेसरी स्टेप, कि अगर मैं किसी का P वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसी का T वैल्यू, किसी का अनोवा, कुछ लोग तो स्पेशली लैंग्वेजेस में अनोवा इज़ अ वेरी पॉपुलर मेजर, वेरी वेरी पॉपुलर मेजर अनोवा करना। पर अनोवा का जब फिगर निकलता है उसका इंटरप्रिटेशन करना और ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो बिकॉज इट लुक्स गुड इन द डिजिटेशन। थोड़े फिगर्स रहते हैं ना ऐसे, तो कलर इमेजेस निकालेंगे उसके, और उसका इंटरप्रिटेशन ये रहेगा कि एज द अनोवा टेस्ट टेल्स अस, द अनोवा फॉर दीज स्कोर्स इज 2.34 and this proves that whatever. It doesn't prove anything. It simply gives me a number. It doesn't prove anything at all. एकदम बेसिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डिविएशंस, then they have to be explained. They have to be explained in reference to, it's not simply as we can see the mean score is, as we can see the median is, as we can see, it doesn't mean anything because it's simply a score. What is the score telling us in terms of language? What is the score telling us in terms of whatever? So मेरा research problem के साथ कैसे relate कर रहा है? That is, I think, very very important. And this is not simply, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत uncommon है. It is a very common practice. I have gone through quite a few dissertations and theses where it is a very common practice. It's pages and pages and pages of statistics with no explanations at all, because it doesn't tell you anything. So all those pages do not have any meaning in that sense. Something that I really like doing, though it is a very long qualitative research process, is what is known as a case study. Commerce में भी काफ़ी यूज़ होता है, पर commerce का case study is a bit different than social sciences or humanities case study. मैनेजमेंट में काफ़ी इस्तेमाल होता है केस स्टडीज़ का, मैनेजमेंट पीपल काफ़ी। तो केस स्टडीज़ कैसे करते हैं मैनेजमेंट पे? आई विल बी इंटरेस्टेड टू नो, हाउ डू यू डू केस स्टडीज़? Okay. Okay. ठीक है. So it is basically driven towards solving a problem. Okay. So it is solving a problem. Commerce. Okay. और किसी फील्ड में केस स्टडी होता है? मैनेजमेंट, आई नो इट्स वेरी वेरी पॉपुलर. साहित्य में नहीं होता है, क्योंकि साहित्य के सारे केस स्टडीज़ ही हैं. किसी एक ऑथर को लेके ही आप केस स्टडी करें, वो केस स्टडी ही होता है और कुछ नहीं होता है. बट आई एम यूजिंग द वर्ड केस स्टडी इन अ वेरी डिफरेंट सेंस, बिकॉज इन मैनेजमेंट एंड कॉमर्स इट्स यूज्ड इन अ डिफरेंट सेंस.
A case study in social sciences is almost aligned to ethnography, where you actually go and stay at a certain place and observe a certain behavior and measure it. तो कहीं पे जाके you spend some time in that place, it's more like an ethnographic study. You can take one case, you can take more than one case, etc. Again, I'll give you an example from a research that I am engaged in right now. हम लोग मोबाइल लिटरेसी प्रैक्टिसेस, लिटरेसी उतना नहीं बट मोबाइल प्रैक्टिसेस देख रहे हैं कि लोग अपने मोबाइल, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है हमारा, लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्या करते हैं, हमें सिर्फ इतना ही जानना है. अनफॉर्चुनेटली किसी ने ये किया ही नहीं. सो नो वन इज़ टेलिंग अस. आप कंपनीज़ के पास जाएंगे तो कंपनीज़ बोलेंगे सर पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने 1 मिलियन हैंडसेट्स बेचे हैं. मैंने बोला वो तो ठीक है, पर किया क्या है उन हैंडसेट्स के साथ, वो सर नहीं पता. तो वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये बहुत बड़ा डेटा सेट था तो हम लोगों ने इसको थोड़ा तोड़ दिया. तो और थोड़ा कम्युनिटी बेस्ड यूसेज का हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो कच्छ के रबाड़ीज़ में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल डायमंड पॉलिशर्स इन सूरत प्रोफेशन बेस्ड कम्युनिटीज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं. 6 केस स्टडीज़ हैं. ये 6 केस स्टडीज़ हैं. नाउ केस स्टडीज़ कैन बी डन इन, you can do it with one individual, you can do it with a community. So we are taking up Rabadis in Kutch. These are nomadic pastoralists. एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. And all the male members, no women, all male members have a mobile phone. Women are not allowed to use mobile phones. They don't have a mobile phone. So we are studying that group. अभी चालू है ये. नवसारी एंड सूरत में डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री है, उसमें वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन विद द मोबाइल फ़ोन. उनसे जब आप पूछोगे कि आप क्या करते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ, बस फ़ोन करते हैं और क्या करना है इसमें. पर वो जो फ़ोन करना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. ऐसे फ़ोन पे क्या करते हैं, किससे बात करते हैं. नहीं जैसे यहाँ पे नौकरी, कोई एक जगह पता चला कि वैकेंसी है तो हम लोग फ़ोन कर देते हैं. रिमेंबर देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन फ्रॉम सौराष्ट्र which travels to Surat for diamond polishing. So it is used to create a local network. So if there is a vacancy, they will call up their village and tell them there is a vacancy, send someone. So it's used to create a certain kind of an aspirational network. Once you get to Surat means you have reached somewhere. So it creates a certain kind of an aspirational network. Anyway. Now, we are looking at cases as communities. Okay. So this is the second one. The third one is women students in Bhavnagar. So we are looking at Bhavnagar University, and a lot of girls travel from nearby villages and areas, come to the university and go back. So we are studying that group. What do they do with their mobile phones? Again, some interesting practices emerge. The fourth group is construction workers who travel from the Dang, Dahod, that region, and come as far up to Bhuj. So they travel during the monsoons and travel till Bhuj, and everyone has a mobile phone. I'll just give you an example of how they use it, and then you will see what happens. I mean, very, very interesting things emerge. For example, there will be, imagine that there is a tribal worker, an Adivasi worker in Ahmedabad working in the construction industry. They are very well networked. There will be another one in Baroda. Okay. And you have these labor markets in all these big cities. So people assemble there in the morning, the contractor will come, they will decide, okay, I need a plumber, I need a this, I need a mason, I need a bricklayer, etc. Take them, pay them for the day, and then they come back to this place, to this labor market. Now what they do is very, very interesting. For example, they will tell their friend, don't go with this supervisor, he doesn't pay you well. Or this supervisor will be making sure that I have a value, okay, which was almost non-existent. So these are some case studies that we are looking at in terms of mobile practices. This is a 4-year project. This is supposed to be a 4-year project. We have finished 2 years, but I don't think it's going to be completed in 4 years because the data set is massive, which we are doing with the University of Leeds. Anyway. Another kind of a case study
I'm sorry if I'm getting a bit autobiographical. Another kind of a case study is looking at a single individual. Okay, and this kind of a case study is very common in language. कि हिंदी, एक बच्चा हिंदी कैसे सीखता है? So I can study the linguistic patterns of a child and follow the child for 3 years, 4 years, 5 years, document all the changes and then present it. But longitudinal studies हैं ये, काफ़ी टाइम जाता है केस स्टडीज़ में. कॉमर्स और मैनेजमेंट में उतना टाइम नहीं जाता है केस स्टडीज़ में. आई हैव सीन केस स्टडीज़ कंडक्टेड विद इन 4 months. स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के लिए जब जाते हैं 6 महीने में, 2 months, 3 months they do a case study. In language that is not possible because you really cannot see any change in 2 months or 3 months. So it's 2 years, 3 years it takes. The fourth qualitative, and these are all qualitative forms of research, is ethnography. Again longitudinal है. Ethnography में I'm trying to think of an example जो काफ़ी popular है यहाँ पे. If you think of Meghani's work in collecting folk tales and folk songs, सौराष्ट्र रसधार जो book है, तो सौराष्ट्र कच्छ रसधार भी है. Who is the author? I've forgotten. तो Meghani actually went to villages, collected stories, collected folk tales, collected songs, put them all together to make it सौराष्ट्र रसधार. तो ये इस तरह का जो स्टडी है इसको एथनोग्राफी कहते हैं. अब एक तो है कि एथनोग्राफी में आपने कलेक्शन किया और रख दिया, दूसरा है कि आपने एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया और फिर उसको PhD रिसर्च बनाया या बुक बनाया या कुछ बनाया. सो both the things are possible. In literary ethnography you generally go and collect, analyze, because remember Meghani wrote a long introduction to these collections. The final form of research, and I'll just take 5 more minutes I think, is what is known as action research. ये बहुत popular है आजकल. It has nothing to do with action. It is acting upon one's own practice. Action research कहते हैं. Commerce, management, language, psychology, social sciences, काफ़ी action research होते हैं आजकल. बहुत simple सा research है. It is first of all collaborative research. Teachers जो हैं वो generally अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, until unless it is a lunch or something. पर शेयरिंग नहीं होता है प्रैक्टिसेस का, कि मैं क्लास में जाके क्या पढ़ाता हूँ. पीपल एक्चुअली फील एक्सट्रीमली स्केयर्ड इफ समवन एल्स, अ कॉलीग और समवन कम्स एंड सिट्स इन द क्लास. यू विल सी इट अक्रॉस टीचर्स कि मेरे क्लास में अगर मेरे कॉलीग ने कहा कि मैं ज़रा आके देखूँ क्या पढ़ा रहे हो, नहीं यार आज मज़ा नहीं आएगा, तुम बाद में आना, मज़े वाली जब चीज़ कहूँगा तब आना. टीचर्स आर वेरी वेरी रिलक्टेंट टू डू share their practices. अब ये शेयरिंग और प्रैक्टिस एक्शन रिसर्च के द्वारा हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एक्शन रिसर्च हम लोगों ने किया था और बहुत मज़ा आया था, तो मैं वो कहानी थोड़ा सुना देता हूँ. स्टूडेंट अगर टीचर को क्रिटिसाइज़ करे ना तो टीचर का ईगो फंस जाता है, बहुत बुरी तरह फंस जाता है. और हम लोग गलतियों, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग मल्टी मोडल पर्सनालिटीज़ हैं. मतलब कि हम लोग गलती एक करते हैं पर इफ़ेक्ट उसका होता है 50 लोगों पे, क्योंकि 50 लोग क्लास में बैठे हुए हैं. यहाँ पे अगर मैं गलती से एथनोग्राफिक रिसर्च की जगह कोई और नाम ले लूँ तो सब लोग वही मान के चले जाएंगे, एंड दैट विल बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस क्लासरूम्स ऑल ओवर द स्टेट. तो मेरी आदत थी काफ़ी स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछने की. क्वेश्चंस मतलब ऐसे ही, अच्छा तुम बताओ कि क्या है, किसी से ऐसे नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड दे विल रिस्पॉन्ड. तो मुझे जानने की इच्छा हुई कि ये सचमुच ये लोग जवाब देते हैं कि ऐसे मुझे खुश करने के लिए देते हैं. एंड देन आई रियलाइज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आई आस्क्ड आर व्हाट आर नोन एज डिस्प्ले क्वेश्चंस. डिस्प्ले क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब
आप पहले से जानते हैं। तो एक्चुअली मैं अपनी नॉलेज दिखा रहा था स्टूडेंट्स को। अच्छा, आपको नहीं आता है, ये कविता किसने लिखी मुझे जवाब पता है, तो ये सवाल मैं कुछ जानने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को जताने के लिए कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने एक एक्शन रिसर्च किया था कि हमारे इंस्टीट्यूट में, मैं पहले एच.एम. पटेल इंस्टीट्यूट में था, वहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू टीचर्स आस्क इन द क्लासरूम, और कोलैबोरेटिव था। तो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे मेरे कलीग कोई क्लास ले रहे हैं तो हम लोग पीछे एक चेकलिस्ट लेके बैठते थे, और वो जब क्वेश्चंस पूछते थे तो हम लोग टेक करते थे, अच्छा ये डिस्प्ले है, ये है, ये है, ये है, ये। मैं जब क्लास ले रहा था, मेरा कोलीग बैठता था, एंड रिमेंबर दैट यू डोंट रियली रियलाइज कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। एंड देन वी एक्सचेंज नोट्स, एंड देन आई रियलाइज दैट my questions are all display questions because I know the answers. But one of my colleagues' questions were what were known as a tagging question, which is basically you don't know really the answer, you're expecting the other, which is a good practice, which is a very, very good practice. तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि मैंने बोला कि अच्छा, मैं कोशिश करूँगा आप टैगिंग क्वेश्चन पूछने की। You sit in the class and see whether I am doing tagging questions. So he sat in the class, and then I started improving. We wrote a paper on it and showed how it's a research paper. अपना ही भला हुआ, पर उसके साथ एक research publication भी हो गया. Now, this is something what is known as action research. You are working on a problem that you encounter. It could be any problem. Most of the action research is done in terms of actual problem encountered. कि पीछे वाले जो बच्चे हैं मेरे क्लास में, वो सारे सोते हैं, क्या करें? मेरा बहुत सिंपल सा जवाब है कि सोने दो, क्योंकि उनको जगा के थोड़ी ज़बरदस्ती पढ़ा सकते हो। बट इफ़ इट इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ people are snoring in the class and people are doing all sorts of things and you don't want that to happen, तो आप कैसे इसको एड्रेस करेंगे? How do you address this problem? This is what action research does. Now, action research has a model and it has to be thoroughly research oriented. ऐसा नहीं कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे बताओ. It has got a model of research where you can use quantitative methods, you can use qualitative methods, but something that can be used for problem solving. Finally, दो तरह के रास्ते पे जा सकते हैं रिसर्च में, एक डिडक्टिव और एक इंडक्टिव. मैं अभी तक जो बोल रहा था ज़्यादातर डिडक्टिव रिसर्च, वेर यू हैव अ मॉडल, यू टेक दैट मॉडल एंड अप्लाई इट फॉर एनालिसिस. बहुत सारा रिसर्च है जो अभी उभर के आ रहा है. इनफैक्ट द एग्जाम्पल्स दैट आई वाज गिविंग यू अबाउट मोबाइल लिटरेसीज, वी डोंट हैव अ मॉडल बिकॉज लिटरेसी का जो मॉडल है वो बेकार है, एंड वी डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव मॉडल. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लुकिंग एट द डेटा इन फ्रंट ऑफ अस एंड ट्राइंग टू इवॉल्व अ मॉडल आउट ऑफ इट, इवॉल्व अ थियोरेटिकल मॉडल आउट ऑफ इट. दैट काइंड ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड इंडक्टिव, where I am inducing a theory from my data. I am not putting a theoretical model onto the data. Okay. In my opinion, probably, inductive research can be much more rich in production than deductive research. But for PhD purposes, do deductive research because it is time bound. It is just 3 years. Inductive research generally takes a longer period of time. Thank you very much for your time. Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University.
તમે ઘણા બધા મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જોયા હશે, વાયોલિન, હાર્મોનિયમ, સિતાર, ગિટાર, એ બધા રેગ્યુલર મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો, આ એક લાકડા કાપવાની કરવત છે જેને અહીંયા સ્ટેન્ડ ઉપર માઉન્ટ કરેલી છે, અને આ વાયોલિનની બો ગજ. હવે આ કરવત જે છે આ કંઈ રેગ્યુલર મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નથી, પણ આ જે વાયોલિનની બો ગજથી હું આ કરવતમાં વાઇબ્રેશન ક્રિએટ કરું છું અને એક પર્ટિક્યુલર મ્યુઝિકલ નોટ, સંગીતનો સૂર કાઢવા માટે એને એક પર્ટિક્યુલર એંગલે, ખૂણાએ એને હું વાળું છું. મારે બીજો મ્યુઝિકલ નોટ જોઈતો હોય તો એને થોડી બેન્ડ કરી અને બીજે ઠેકાણેથી એને વાઇબ્રેટ કરું છું અને મને બીજો નોટ મળે છે. આવી રીતે જુદા જુદા સંગીતના સૂર કાઢવા માટે એમાં વાઇબ્રેશન ક્રિએટ, સ્પંદનો ઉત્પન્ન કરવા પડે અને એક પર્ટિક્યુલર એંગલે, ખૂણામાં એને વાળીએ તો આપણને એ પર્ટિક્યુલર મ્યુઝિકલ નોટ મળે છે. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી